So back to what I was saying. Could be us. धुंधार साहब मर गए। अगर हमारा मुआहदा अभी भी कायम है तो फिर हमें जाने दो। तुमने वादा किया था तुमने कि तुम अपने वादे की पासदारी करोगे। तुमने भी वादा किया था कि तुम हर सवाल का सही जवाब दोगे। हमने किया भी। आपके पूछे गए हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। और जो मैंने नहीं पूछा उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है, लेकिन मुआहदा होता है। मेरा तुमसे एक और सवाल है। तो गाय ने जब उमर साहब पर वार किया तो अंदर कैसे दाखिल हुआ था? मुआहदा होता है। तुमने मुझ पे भरोसा किया और तुम पे मैंने। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर तुम जानते हुए भी खामोश रहे तो फिर मुआहदा टूट जाएगा। वहां सराय में दाखिल होने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की तो नहीं थी। बताओगे तो गाय अंदर कैसे दाखिल हुआ? पेत्रोस, बताओ। सुरंग के जरिए दुकान से सराय तक हमने जो सुरंग खोदी थी उससे। सुरंग? कितनी सुरंगें? बताओ कितनी है? 3 सुरंगें, एक गिरजाघर की तरफ, एक बाजार की तरफ और आखिरी सुरंग सराय की तरफ। क्या वाकई ऐसा है? क्या निकोला को उनका मालूम है? वो सबके बारे में जानता है। चलो दिखाओ वो सुरंगें। हमने पूरी दुकान ऊपर नीचे कर दी, लेकिन इन जैसे शैतान भी खुफिया रास्ता तलाश नहीं कर सकते। ये राहदारी किस तरफ जाती है? सीधा सराय की तरफ। इसका मतलब तो गाय ने यहाँ से दाखिल होकर उमर साहब पर हमला किया था। ये सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम है। एक गिरजाघर की तरफ जाती है और दूसरी बाजार की तरफ। यानी कि निकोला सोद पर हमला करने के लिए राहदारी इस्तेमाल करेगा। सही कहा। कालानूस और उसका लश्कर इसी वजह से आ रहा है। सऊद पर हमला करेंगे। अगर हमें ये सुरंगें ना मिलती तो हमारे साथ क्या होता? वो ना सिर्फ सऊद पर गोगदोग बल्कि कबीले पर भी हमला करने की ताकत रखते हैं। बताओ मुझे, वो हमला किस वक्त करेंगे? हम नहीं जानते। ये बात तो
ہم بھی نہیں جانتے. لیکن یہ حرکت کرنے سے پہلے وہ تم لوگوں سے رابطہ تو ضرور کریں گے. بتاؤ مجھے تمہارا رابطہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہیلن. زندہ رہنے کے لیے ایک آخری کام اور کرنا ہوگا تمہیں. تو گائے کے میرے بھائی کو مارنے کے بعد تجارت رک گئی ہے. ایک چرواہے کو اپنے ریوڑ کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. اگر تم نہیں کھلا سکتے تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں اپنے پیروں میں گرا کر اپنے کھروں سے کچل ڈالیں گے. کیسے؟ میں اپنے سپاہیوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا. تم اپنے تمام سپاہی اور تاجروں کو اکساؤ گے. تم انہیں سونے اور جنگ کا لالچ دے کر انہیں لڑنے پر مجبور کر دو گے. میرے پاس ان کو دینے کے لیے نہ تو سونا اور نہ ہی کسی قسم کی طاقت ہے نکولا. اگر سلجوقوں کو دینے والا محصول اپنے سپاہیوں پہ خرچ کرو تو کیا ہوگا؟ یہ ہاتھوں کیا اس کا حساب نہیں مانگے گا؟ جب ہم سعود حاصل کر لیں گے تو بیتینیا سے ترکوں کا تسلط ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کہ ہاتھوں کے پاس اور بھی بہت مسئلے ہیں سلجھانے کے لیے. وہ ہماری سرحد پر نہیں آ سکے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تم صرف میرے بھائی کا انتقام میں پھنسے رہو گے، جبکہ میں نے تمہارے لیے شہنشاہ سے بات کی ہے کہ تمہیں تیغفور بنا دیا جائے. اگر تم میں یہ کرنے کی جرت نہیں ہے تو کروں گا نکولا. مجھے آپ کے لیے اور ہماری فتح کے لیے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. دعا. تم بس میرے لیے دعا کر سکتے ہو. ہاں، اور تمہارے تیر انداز چاہیے مجھے. بس اتنا ہی؟ ہاں، اتنا ہی. میرے سارے سپاہی کل سے آپ کے ماتحت ہوں گے نکولا. اب میں دکان بند کر رہا ہوں جناب. دھندار کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم. جب وہ قلعے میں آیا تھا تو تم نے اس سے کیا بات کی تھی؟ غزل خاتون کے بارے میں. عثمان نے اسے قبیلہ بدر کر دیا. غزل ہے کہاں؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا ہے، اور جہاں تک میں دھندار کو جانتا ہوں اسے یہ پتہ چل گیا ہے، اور اب وہ اپنی خاتون کے پیچھے جا رہا ہوگا. اور پیتروس کہاں ہے؟ وہ ایزنک سے ابھی واپس نہیں آیا، لیکن آج شاید آ جائے. تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا وہ بڑا دن آ گیا ہے؟ سود کی جنگ کب ہوگی؟ کل. اچھا، بہت اچھا. سنو، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے حملہ کرنے والے فوجیوں کی کس طرح مدد کرنی ہے. پیتروس کے واپس آنے کے بعد جو ضروری ہوا وہ ہم کریں گے. تم فکر مت کرو. اب اپنے کان کھول کر بات غور سے سنو. کافروں کی جرت بڑھتی جا رہی ہے. وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم ہر چیز سے بے خبر ہیں. اب ان اقدامات کی بات کرتے ہیں جو اس وقت کرنے بہت ہی ضروری ہے.
उस्मान साहब, हमें निकोला के सिपाहियों को उन सुरंगों में दाखिल होने से पहले रोकना होगा। हम अचानक हमले से उसके सिपाहियों को मारकर इस परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुरंगों में दाखिल हो गए तो हमें बहुत सी जानों का नुकसान उठाना पड़ेगा, सोच से भी ज्यादा। सही कह रहे हैं बामसी साहब, उनको सऊद में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग खुले मैदान में हमला करते हैं तो निकोला के फौजियों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने कबीले में मौजूद गद्दार को तो मार दिया, लेकिन निकोला की चालों से हमें होशियार रहना होगा। वो झूठी खबरें फैला सकता है। उस्मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। भाई, मलिक वापस आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। ले आओ उसे। बोलो, क्या खबर लाए हो? एलन दुकान पर आई थी, वो कल हमला करेंगे, वक्त कम है। और वो ये कैसे करेंगे? उसके ज्यादातर सिपाही सुरंगों से दाखिल होंगे और कालानूस सऊद के मरकजी दरवाजे से हमला करेगा। अगर तुम धोखा दे रहे हुए हमें तो कल पता चल जाएगा। उस्मान साहब, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ कल तक कायम रहे बेकार है। तो ले जाओ इसे। एक तरफ कालानूस, दूसरी जानिब निकोला। सुरंगों से और शहर के दरवाजों से। इतने मुख्तसर वक्त में हम सुरंगों का और शहर के दरवाजों का दिफा कैसे करेंगे उस्मान साहब? बामसी साहब, बाबा अर्तुगरुल गाजी क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि खेल जितना आसान होता है उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये जितना मुश्किल होता है उतना ही आसान होता है। तो खेल मुश्किल होगा। उस्मान साहब ने अपनी पीठ से गद्दार का बोझ उतार दिया। अपने कबीले में मौजूद गद्दार को मारने में कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का, अब उस्मान साहब काफिरों के सामने और मजबूती से खड़े होंगे। सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, वो हमारे सामने भी मजबूती से खड़े होंगे। हम भी तो यही चाहते थे ना बाबा, एक ऐसा जाबाज सरदार जो हमारे कबीले की हिफाजत कर सके। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं भूलो कि उस्मान साहब जितने मजबूत होते जाएंगे उनके मुतालबात में उतना ही इजाफा होगा। अब हमें भी कुछ अच्छा करना होगा ताकि वो जान ले कि केजल साहब की औलाद इतनी आसानी से किसी के भी दबाव में नहीं आ सकती। आपने क्या सोच रखा है बाबा? मैं एक नया काफिला एनागोल भिजवाऊंगा। आपके कहने का मतलब है जासूस? अभी नहीं मलहून, अभी नहीं। फिल वक्त हमारी तिजारत जारी रहेगी। हमें निकोला का मुकम्मल एतमाद हासिल करना होगा ताकि उसे
किसी किस्म का कोई शुबा न हो। मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने खैमे में आपको बुलाया है। इसका मतलब उनके मुतालबात फिर से शुरू हो गए। हमें क्या करना होगा? मेरी बेटी जरा जाकर देखो और ये मालूम करो कि वो क्या चाहता है। कबीले में मुहाफिज सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं होगा, और इस तरह हम कबीले में बआसानी हमला कर सकते हैं। अब मेरे भाई का बदला लेने का वक्त आ गया है। निकोला, तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ तो गड़बड़ है, दिख रहा है मुझे। हेलेन के आने तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ। हेलेन, उम्मीद है कि तुम खुशखबरी लेकर आई होगी। सब ठीक है निकोला? मलिक ने दुंदार से क्या बात की थी? उन्होंने गजल के बारे में बात की थी। उस्मान ने दुंदार की बीवी को उसके भाई के पास भेज दिया है। हो सकता है दुंदार भी वहीं गया हो। अच्छा है, उसका कस्ता मूनू में रुकना मेरे लिए फायदेमंद है, और जब वक्त आएगा वो मेरे लिए मुफीद होगा। हेलेन, और वो सुरंगे, क्या वो जानते हैं सुरंगों का क्या करना है? मैंने उन्हें बताया है कि हमले के दिन क्या करना है। वो भी इतने ही बेचैन हैं जितने हम। वो अब भी आबादकारी के कागजात के पीछे हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद इस सरजमीन पर एक भी तुर्क बाकी नहीं रहेगा। एक भी तुर्क नहीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाए। खुश आमदीद मलहून खातून। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने बाबा का सलाम लेकर आई हूँ। वो अपनी मसरूफियत की वजह से आपसे मिलने ना आ सके। वालेकुम। जो जरूरी काम है जानता हूँ मैं। निकोला की तरफ लेकर जाने के लिए नए कारवां की तैयारी हो रही है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, निकोला को घोड़े नहीं बेचेंगे, घरेलू सामान बस। मुझे मालूम है, मैंने आपको इस पर बहस के लिए नहीं बुलाया। ये लीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्रिया। उस्मान साहब मलहून से क्या बात कर रहे होंगे? क्या कह सकते हैं? हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो उसने जिसकी पूछताछ कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ही लीजिए। वो खातून एक दिन किसी ऐसी परेशानी का बाइस बनेगी कि हम दुंदार साहब की चालों को भी याद करेंगे। आप भी आइए। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जिस बारे में गलत थी, गलती की तस्हीह हो गई। अंगूठी को छुपाना भी गलत था, वो भी दुरुस्त हो गया। अब अपनी अपनी गलतियों की तलाफी करने का एक मौका है हमारे पास। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि काफिला एनागोल आप लेकर जाए। क्या आप मुझ पर अब भी एतमाद करते हैं उस्मान साहब? आप ही ने कहा था एतमाद 2 बार नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे मायूस मत करना। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात याद रही। अब जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। एनागोल से मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आए।